Alright, good morning everyone. Today is the 12th of April and we have already taken our entry into put site. Our entry was made on this assumption that there was a strong resistance here and market did the breakout of 49,000 level on the previous day and it gave a fall. So the seller sitting here would be in profit after opening but they had to book their loss. So I'm assuming that there's no SL present on the upper side and that's why I have made this put position taking resistance from this level, and also the buyers would still be active after seeing a gap down but they won't be able to cut down their position after seeing these huge candles. अच्छा 200 पॉइंट्स का गैप डाउन मिला था बट उन्होंने पोजीशन डेफिनेटली अपनी कट नहीं की होगी एंड कट नहीं की होगी तो हमें ऐसे मिलेगी जब डाउन साइड में जब जब उन्होंने एवरेज की होगी बिकॉज दे आर स्टिल सिटिंग इन लॉस बट दे माइट हैव एवरेज देयर पोजीशन इन थिंकिंग दैट दे कुड हैव प्रॉफिट. ये लेट्स सी कितना बड़ा गैप डाउन मिला था आज हमें. 300 पॉइंट्स का गैप डाउन था. इसमें से मार्केट ऑलरेडी रिकवरी कर चुका है 200 पॉइंट्स का. ऑलराइट, इसी बेसिस पर मैंने पुट साइड का पोजीशन बनाया है राइट हेयर. थोड़ा जल्दी बना लिया बिकॉज मार्केट वॉज स्टॉलिंग एंड गिविंग चांस टू बायर्स फॉर एंट्री. एटलीस्ट हमें एक यहाँ पे ब्रेकआउट तक रुकना चाहिए था बट कोई बात नहीं. यहाँ पे पोजीशन बनाया हमने. हम लॉस में बैठे अभी 10 पॉइंट्स के. इसलिए इज गोना बी राइट हेयर 0.15% एंड आवर टारगेट इज at the intraday low. Let's also look at Nifty side by side. निफ्टी में हल्का सा पैटर्न अलग है. निफ्टी में ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ है. लो को भी क्रॉस किया है पर इसने भी रेड कैंडल बनी है कि ये रेड कैंडल बनी है. उसके बाद बायर्स इसमें बैठे हो गए. एसएल डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट है. एवरेज करने का पैसा मिल सकता है उस बेस पे मैंने ट्रेड बनाया है. अपर साइड पे ज़्यादा एसएल ना देखते हुए नीचे एवरेज करने का पॉसिबिलिटी बनते हुए इसी अजम्पशन पे आज ट्रेड बनाया गया. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. थोड़ा एंट्री मुझे लग रहा है आज फिर से गलत हो गया हमारा. 271 पे पाएंगे हमारी 48,800 की पुट की. हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे इस पर 220 का और इस पर हम टारगेट सेट करेंगे 370 का. And that's it. We would let our trade to run and patiently wait for profit or loss. Alright, we are in profit as we expected. Market is giving breakdown. Because no one expects in the market that after forming such a big candle of on the upper side momentum, market would take a sharp U-turn and fall on the lower side. This no one expects, no one can expect it, and no one puts money on that. That's what market do. Market do the exactly unpredicted. That's why I took the bet here. क्योंकि upper side पे ऐसे अवेलेबल नहीं है. और सेलर्स को इतना प्रॉफिट दिखा होगा वो पक्का भाग गए होंगे. वो यहाँ पे पक्का उन्होंने बुक कर लिया होगा. बायर से एवरेज करके बैठ गए होंगे. तब के हिसाब से ये चार्ट था एंड उसी चार्ट के बेस पे मैंने एंट्री ली थी. एंट्री हमारी हमें थोड़ा प्राइस में महंगा मिल गया था पुट का, पर कोई बात नहीं. अब हम सही बैठे हैं एंड अगर एक स्पीडी डाउनफॉल हो देन यू कैन अचीव अ टारगेट विद इन फ्यू मिनट्स. Alright, we can see a breakdown on the chart. Okay, momentum is also coming in the price of the premium. A sharp fall, but let us achieve a target.
this fall shouldn't stop. ये बीच में green candle बन रही है ना, they shouldn't be forming for us to achieve a target. 298 we have seen right now. 300 approximately. Continuously fall आना चाहिए. Buyers also should enter. 48,800 का भी ब्रेकडाउन हो चुका है मार्केट में. सेलर्स भी कुछ आए होंगे रैंडम. Let's see what happens. Alright guys, I have seen around 1000 rupees in profit. That's approximately 70 points. I'm expecting a little more momentum because Magnet is taking support exactly from its lower point, but Nifty has given a breakdown. So I have shifted my SL at my buying price, so we don't take any further loss. Nifty is also taking support from an exactly predefined level from our support that we had earlier marked, but Nifty had already given the breakdown of its lower डे लो. इम्पॉर्टेंट एक लेवल का मार्केट निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है. लेट्स सी व्हाट इज दिस लेवल 22,600. Expecting a further breakdown so we can get a target of 1500 rupees. That's 100 points. 70 points we had already achieved, but I didn't book at that point of time. देखते I have shifted myself to cost. Let the market fall, let it break the intraday low, and we can see a huge momentum. Okay, we are seeing a momentum. 1100 rupees we have seen. I think we should be able to achieve a target of 1500 rupees after some time as we see the breakdown of the low. If we don't do the breakdown at this swing, we are going to book a position at any loss or profit we are having. 1200 we have seen. I am gonna also open a position in my phone so that I can exit as I want. It's not giving the breakdown, it's holding up. I don't know why. Should be giving the breakdown. It's taking exactly the support at this point. Shouldn't be happening, man. Okay, 800 तक वापस जाएगा तो ले लेंगे हम. Exactly इस लेवल को भी इसने यहाँ से कर दिया. और सेंस बनता नहीं है वापस जाने का. डबल बॉटम बना के अगर ऊपर चला जाए तो फिर वो गलत रहेगा. उससे पहले हम एग्जिट कर देंगे. Come on man, give us a breakdown. नहीं मन कह रहा है कि आज सपोर्ट लेके ऊपर ही जाने वाला है. सो आई एम थिंकिंग ऑफ एग्जिटिंग. कोई बात नहीं, 500 रुपये कम प्रॉफिट हुआ तो. थिंक आई शुड बी एग्जिटिंग. 990, 950, 79, 1014, 6. Come on. टाइम स्पेंड कर रहा है लेवल पे. टाइम स्पेंड कर रहा है, प्रीमियम खा रहा है. हाँ, नहीं हो सकते हम. Alright, I think I'm exiting right now. 2830. ओके, भाई टर्मिनल खुल जा भाई, एग्जिट करना है यार. टर्मिनल खुल के अंदर अब बहुत प्रॉब्लम है यार इसमें. फेल टू कनेक्ट. फक मैन, ज़्यादा खा गया प्रॉफिट मेरा. फक. ऑन.
All right, we have exited 654 rupees in profit. We have seen 1250 rupees as the maximum, but we had to exit right here. डबल बॉटम 10,000 था. आई ट्राई टू होल्ड फॉर माई प्रॉफिट्स. ब्रेक डाउन करने का इंतजार किया बट नहीं किया. 800 रुपीज़ पे वापस आया. मैंने बुक किया जैसे मैंने डिसाइड किया था. नो हंगर नो ग्रीड. परफेक्ट एंट्री थोड़ा जल्दी था. एग्जिट वॉज परफेक्ट. नो वरीज, आज नहीं तो कल प्रॉफिट हो जाएगा. अब देखो अब ये चल रहा है, दिख रहा है आपको ट्रेड, बट इट इज़ नॉट रनिंग. अब देखो अब ब्रेक डाउन कर रहा है यार 1-2 मिनट बाद ही. फक मैन. अब कर भी देगा. और ये अभी एम पैटर्न बना रहा है. कोई ना भाई, अपना तो मार्केट ने पलट दिया पल्ला. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. एंट्री आपको बताया था मैंने किस बेसिस पे बनी थी एंट्री. Entry 3 we had seen a big gap down on 300 points and sellers were sitting, मतलब 49,000 के ब्रेकआउट पर एक फॉल आया था. तो सेलर्स ने कुछ हो सकता है यहाँ पे सेल किया हो 49 ब्रेक डाउन करने के बाद, स्मार्ट सेलर्स ने. एंड उन्होंने पोजीशन बुक कर लिया होगा जब तक कि मार्केट यहाँ पर आया होगा मूव करके अप साइड पर आया होगा. तो अपर साइड मुझे एसएल नज़र नहीं आ रहे थे. एंड डेफिनेटली जो बायर्स के एसएल थे वो 48,800 के नीचे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ प्लेस हो गए. इस लो के यहाँ पे नीचे, इस लो के नीचे यहाँ पे. तो assuming the market opened here and moved on the upper side, मतलब buyers wouldn't be in profit but they also wouldn't have booked their positions in loss. They would have tried to average out of the position कि यहाँ पे थोड़ा और ऊपर आएगा तो we will be in profit. उसी को देखते हुए पैसा लगा, लोगों ने बाय किया. एक ऐसा रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी की, बट दैट डिडंट हैपन. मार्केट डिडंट क्रॉस दिस हायर लेवल एंड मार्केट गिव अ ड्रास्टिक फॉल फ्रॉम दिस एज वी प्रेडिक्टेड. वी टुक आवर एंट्री हियर and then we saw a fall of around 70 points, 70-80 points, and then we exited after a W pattern was seen forming here. We fell slightly short of our target of 1,500 rupees today, so we exited at 1,000. So we didn't have to take loss. एक दिन पहले ऐसे लॉस हो गया था मेरा. In try for achieving big targets I had to bear loss. तो 2 दिन से लॉस में थे. आई डिडंट हैव टू रिपीट दैट. नहीं, एक ही दिन से लॉस में थे, तो इसलिए आज प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी था. बट ये भी गलत हो गया कि हमारा द प्रॉफिट यू बुक शुड ऑलवेज बी द ग्रेटर देन योर लॉस, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एसएल. तो हमारा एसएल था 70 रुपीज़ का. आज हमने 650 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया. दैट इज़ लेस. आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. बट क्या करो, एग्जिट में स्लिपेज हो गई, एग्जिट करते टाइम लेट हो गया. सो दीज थिंग्स हैपन्स, बट एटलीस्ट वी आर इन प्रॉफिट. दैट्स गुड. We still have a loss of rupees 423 rupees to recover from the market, and then I will be actually trading the live market, in the real market, not with paper currency, not with paper trading. But I would like to maintain my discipline of only 1 trade a day and no greed, nothing. As your levels are hit, you need to exit, and as your stop loss is hit, you need to exit. That's it guys. That's the one thing you need to follow. ओवर ट्रेडिंग करोगे पैसा आपका जाएगा, STT स्टैम्प ड्यूटी लग के आपका टैक्स इतना इकट्ठा हो जाएगा. यू नीड टू बेयर इट आउट ऑफ योर पॉकेट. मेरा ऐसे ही 50-60,000 मेरा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में इतना चार्जेस में गया हुआ है. सो आई नो कि वो छोटे छोटे चार्जेस पाइल अप करके इतना ज़्यादा बन जाते हैं. चाहे कोई ना आपको बेशक फ्री भी दे रहा हो, फ्री में आपको ब्रोकरेज भी दे रहा हो, जैसे 0 रुपीज़ में मेरा एसिड वगैरह देते हैं, पर फिर भी आपका पाइल अप होकर लग जाता है. आई ट्राइड स्कैल्पिंग, बट उसमें इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता. 6 ट्रेड हो गए, मन कर एक और ले ले, 7 ले ले, 8 ले ले, 9 ले ले, 10 ले. देयर इज़ नो लिमिट टू दैट. मैंने 2 ट्रेड्स ट्राई करने की कोशिश की, बट उसमें माइंड जो है कंट्रोल नहीं कर पाता कि 2 ही तो है यार, 3 इस तरह और ले लेते क्या ही हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. बट आप और ज़्यादा लॉस में चले जाओगे. सो एक ही ट्रेड करो, टर्मिनल क्लोज करो, चार्ट्स मत देखो. दैट्स इट. लॉस हो गया लॉस सही, प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट सही. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.